آئیے میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا آئیے 13ویں باب کی 17ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستے سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے۔ اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ اور انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں ڈیرا کیا، اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ اس سے پہلے ہم نے فسا کے تعلق سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے 10ویں آفت آتی ہے اور مصر کے تمام پہلوٹے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور اب خدا نے ان کو ملک مصر سے نکال لیا ہے، لیکن ابھی تک جو بلا ہے وہ مکمل طور پر ٹلی نہیں ہے، ابھی تک خطرہ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹلا نہیں، کیونکہ جو فرعون نے ایک سوال پوچھا تھا کہ تمہارا خداوند کون ہے، خداوند کون ہے کہ میں اس کی سنوں، سو لگتا ہے کہ ابھی اس کا جواب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا، اور خداوند جان بوجھ کر ان کو کامن راستے سے نہیں لے جاتا۔ کامن راستہ کیا ہوتا؟ کامن راستہ یہ تھا ساحلی راستہ، تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے، اور یہ دنوں میں سفر کیا جا سکتا تھا، اور اگر آپ کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں تو کچھ ہفتے مہینے لگ سکتے تھے، لیکن یہ بہت لمبا سفر نہیں تھا۔ یہ ایک تجارتی سفر تھا جو کہ ساحل کے یعنی تجارتی راستہ تھا جو کہ ساحل کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، اور وہاں پر خوراک مل سکتی تھی، وہاں پر پانی مل سکتا تھا، وہاں پر چیزیں راستے میں مہیا ہو سکتی تھیں، یعنی کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اگر اس راستے سے جایا جاتا تو کوئی مسئلہ پیش نہ آتا، کیونکہ وہ تو ایک تجارتی گزرگاہ ہے، ایک تجارتی راستہ ہے۔ لیکن خدا اس راستے سے ان کو نہیں لے جاتا، اس میں خدا کا خاص مقصد تھا، خدا کا ایک خاص مقصد تھا جو کہ خدا نے اچیو کرنا تھا۔ اب اس سے جب وہ دوسرے راستے سے نکل گئے تو فرعون کو یہ لگے گا کہ ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں بچا، شاید ان کے خدا کے پاس میکسیمم جو طاقت تھی وہ اس نے دکھا لی ہے، اور اب مزید کوئی چال اس کے پاس باقی نہیں بچی، مزید کوئی حربہ نہیں ہے، مزید کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ان کے خدا نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کا خدا ان کو غلط راستے سے لے گیا ہے جہاں پر یہ پھنس جائیں گے آگے، کیونکہ سمندر ہے تو اس کا خیال ہے کہ یہ لوگ پھنس جائیں گے، یہ آگے سمندر ہے، اور ان کا خدا جو ہے وہ بھٹک گیا ہے، وہ لوگوں کو لے کر یہ لوگ بھٹک گئے ہیں، ان کے خدا کو راستہ معلوم نہیں پڑا۔ لیکن خدا کا کیا مقصد تھا کہ جو فرعون ہے یہ پیچھا کرے، یہ سوچے، ایک تو مقصد یہ تھا کہ فرعون پیچھا کرے گا اور جو آخری ایک مصیبت مصر پر آئے گی خدا اس سے اپنا جلال ظاہر کرے گا، اور پھر یہ لوگ بیابان میں آئیں گے، اور یہ پھر حورب کے پہاڑ پر یا کوہ سینا پر آئیں گے، یہ دونوں ایک ہی پہاڑ کے نام ہے، اس پر آئیں گے، وہاں پر شریعت دی جائے گی۔ آگے خدا کا ایک مقصد ہے جو کہ خدا پورا کرے گا، اور وہ مقصد اس راستے سے پورا نہیں ہوگا کہ اگر وہ تجارتی راستے سے سیدھے سیدھے چلے جائیں، کیونکہ ان کو شریعت دینا بھی مقاصد میں شامل ہے، ان کو سکھانا بھی مقاصد میں شامل ہے، کس طرح سے خدا پر بھروسہ کیا جاتا ہے یہ بھی خدا کے مقصد میں شامل ہے۔ بنی اسرائیل کو قوم تو خدا نے بنا دیا ہے، لیکن اس قابل ابھی وہ نہیں ہے کہ وہ جا کر اس ملک میں رہ سکیں، وہ خدا کے قوانین کو نہیں جانتے، ان کے پاس خدا کی شریعت نہیں ہے، ان کے پاس لاز نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں جانتے، ان کے پاس بڑی تھوڑی انفارمیشن ہے خدا کو لے کر۔
सो खुदा ये सारा कुछ उनको रास्ते में क्या करेगा, सिखाएगा। एक और बात है कि वो जो तजारती रास्ता है उस पर फौजी चौकियां थी, मिस्री फौजी चौकियां थी, यानी मिस्री फौज उस रास्ते पर बैठी थी और जगह जगह उन्होंने चौकियां कायम कर रखी थी। और अगर इस्राएली उस रास्ते से जाते तो क्या होता, उनकी रास्ते में लड़ाई हो सकती थी और वो अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। सो खुदा ने कहा कि ये लड़ाई भड़ाई देखेंगे, ये मारपीट देखेंगे, कत्लो गारत देखेंगे तो ये डरेंगे कि हम वापस लौट जाएं। सो खुदा उनको उस रास्ते से नहीं ले जाता। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत दफा ऐसा होता है कि हम नहीं जानते होते कि आगे क्या पेश आएगा, हम फ्यूचर के हालात से, मुस्तकबिल के हालात से वाकिफ नहीं होते, लेकिन खुदा को नजर आ रहा होता है। खुदा बाजुकात हमें उस रास्ते से नहीं ले जाता जो कि हम सोचते हैं कि हमें उस रास्ते से जाना चाहिए, ये हमारी सोच होती है। लेकिन क्योंकि खुदा को आगे नजर आ रहा था कि आगे क्या हो सकता है और भी बहुत सारे मकासद थे, इसलिए खुदा उनको उस रास्ते से नहीं लेकर जाता। और मूसा जाते हुए यूसुफ की हड्डियों को साथ ले जाता है, क्योंकि यूसुफ ने ताकीद की थी कि जब तुम यहां से जाओ तो मेरी हड्डियों को साथ लेते जाना। पैदाइश की किताब से हमें पता चलता है, अगर आप हवाला देखना चाहें तो 50 बाब और उसकी 25-26 आयत है। इससे हमें पता चलता है कि यूसुफ को कभी भी दफनाया नहीं गया था। उसकी जो लाश थी वो कहां पर थी, एक ताबूत में रखी थी, उसको दफनाया नहीं गया था। उसकी लाश में खुशबू भर के उसको ताबूत में रखा गया था। और इन 400 सालों में यूसुफ की जो लाश थी, उसका जो ताबूत था, ये उनके लिए गवाही था कि एक दिन खुदा आपको यहां से ले जाएगा। ये ताबूत क्या गवाही देता रहा, 400 साल के एक दिन आएगा जब खुदा तुम लोगों को यहां से निकाल कर ले जाएगा। और जब खुदा तुम लोगों को यहां से निकाल कर ले जाए तो मेरी हड्डियां जो हैं, जो इस ताबूत में हैं, उसको साथ लेते जाना। सो ये ताबूत उन्होंने संभाल कर रखा और जब वो यहां से निकलते हैं तो उसको अपने साथ लेते जाते हैं। अब जैसे ही बनी इसराइल यहां से निकलते हैं, और बनी इसराइल निकले कहां से थे, रामसीस से, और दूसरा इलाका कहां पर यूसुफ ने उनको बसाया था, जशन का इलाका। वो जशन के इलाके में बसे थे और वो शहर कौन सा बना रहे थे, पैदाइश की किताब के मुताबिक रामसीस, और एक और शहर था, उसका नाम क्या है। बेसिकली ये उन शहरों से, रामसीस से निकले हैं और जशन के इलाके से। खास तौर पर रामसीस का जिक्र खरूज की किताब में किया गया है। अगर आप खरूज की किताब का पहला ही बाब देखें, 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बिगाड़ लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए जखीरे के शहर, कौन से, पतूम, नहीं नाम बोलो ना, पतूम और रामसीस बनाए, रामसीस बनाए। सो ये दो शहर थे जो कि वो लोग बना रहे थे और यहां पर वो गुलामी भी कर रहे थे, और जशन का इलाका था। यहां से ये लोग निकलते हैं, और जब ये लोग निकलते हैं तो इनका पहला जो क़याम है वो कहां पर होता है, सुक्कात में। पहला क़याम कहां पर है, सुक्कात में। और उसके बाद ये लोग आगे चलेंगे, हम आगे इस सारे पैसेज को पढ़ते भी हैं। लेकिन खुदा ने इनके साथ एक आग का सतून और एक बादल का सतून किया है, और ये आग का सतून, बादल का सतून, हम लेटर ऑन इस पर डिटेल से बात करेंगे जब हम बियाबान के सफर को देखेंगे। ये इनके साथ साथ रहता है, ये रात को भी इनके साथ है, ये दिन को भी उनके साथ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा, यह जाता है 7 दिन के अंदर अंदर कहां पर पहुंचना है, बहरे कुलजम के किनारे तक। और जो जोसीफस है वो ये कहता है कि 3 दिन सफर करके ये वहां पर पहुंच गए थे, और बाकी जो 4 दिन है वो क्या था, बहरे कुलजम के किनारे पर क़याम था। और यानी ये 7 दिन के अंदर अंदर बहरे कुलजम तक पहुंच चुके थे। आगे चलते हैं, 14वें बाब को पढ़ते हैं। लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौटकर मिजदाल और समंदर के बीच फी है खीरूत के मुकाबिल बाल सफून के आगे डेरे लगाएं, उसी के आगे समंदर के किनारे किनारे
डेरे लगाना, ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता कि ये समंदर के किनारे कहां पर डेरे लगाए गए थे। आज तक जो मुख्तलिफ मुफस्सर हैं वो बहस करते हैं, कोई और मल्टीपल लोकेशंस बताई जाती हैं, एक नहीं बल्कि 3, 4, 5, 6 बहुत सारी लोकेशंस बताई जाती हैं कि ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। बहुत सारी लोकेशंस बताई जाती हैं कि इन लोकेशंस में से कहीं पर ये हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है। फिरौन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और वो इनका पीछा करेगा, और मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज हूंगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिरौन और उसके खादिमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। अब वो लोग परेशान हैं, उसके जो अफसर हैं वो भी परेशान हैं, और फिरौन खुद भी परेशान है कि हमने ये क्या किया, हमने उनको क्यों जाने दिया, हमने उनको क्यों जाने दिया। और इस क्यों की कम से कम 10 वजूहात इन लोगों के पास मौजूद थी। 10 वजूहात कम से कम फिरौन के पास थी कि उसने क्यों इनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया। अपने रथ से मतलब है कि उसने अपने रथों को, पूरे जो उसके फौज के रथ थे उनको तैयार करवाया, अपनी कौम के साथ लोगों को साथ लिया, और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। आज ये जो फख्र के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये रिबेलियन या बगावत की नेचर में आता है। जब आप किसी भी अथॉरिटी के आगे बगावत करते हैं तो ये उस तरह का इसका इस्तेमाल है। और इन्होंने किससे बगावत की है? फिरौन से। लेकिन बहुत जल्द ये लोग खुदा से भी बगावत करेंगे, बगावत करते रहेंगे, बुड़बुड़ाते रहेंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे। बगावत वाला एटीट्यूड अगर तो गुनाह के खिलाफ हो फिर तो ठीक है, लेकिन ये खुदा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समंदर के किनारे फी खहीरोत के पास बाल सफून के सामने डेरा लगा रहे थे, जा लिया। और जब फिरौन नजदीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो निहायत खौफजदा हो गए। अच्छा, ये जो खौफजदा होना है ये बड़ा एक अमूमी सा रद्द अमल है। अमूमी सा रद्द अमल इसलिए है क्योंकि फिरौन के पास एक बेहतरीन फौज है, बल्कि उस जमाने की सबसे बेस्ट फौज आप कह लें फिरौन के पास है। रथ और बाकी जो सामान है वो उसके पास है, और रथों का मुकाबला पैदल लोग नहीं कर सकते। बनी इसराइल के पास क्या था? उनके पास ना तो ट्रेनिंग है, क्योंकि वो फौज में तो भर्ती नहीं होते थे, वो तो गुलाम थे। वो तो हाँ, जिस्मानी तौर पर जरूर मजबूत होंगे क्योंकि वो गुलामी करते थे, लेकिन उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास इस तरह का इक्विपमेंट नहीं है। रथों का ट्रेंड फौज का मुकाबला वो करने के काबिल नहीं है। और जब उन्होंने इधर देखा तो इधर क्या है? फौज है। और जब पीछे देखा तो पीछे क्या है? समंदर है, और समंदर भी बहुत बड़ा है। और समंदर, जाहिर सी बात है, कुछ लोग इसको इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि ये जी बड़ा शैलो सा पानी था, चंद फुट पानी था, और अगर सिर्फ चंद फुट पानी हो तो वो फौज को डुबा नहीं सकता, फौज को डुबा नहीं सकता। अगर बड़ा शैलो सा पानी है जिसमें से आप गुजर के जा सकते हैं तो उससे फौज नहीं डूबेगी। इसका मतलब है कि पानी क्या है? गहरा पानी है। इतना कम से कम गहरा जरूर है कि फौज उसमें डूब सकती है। अगर बहुत गहरा ना भी हो, यानी सैकड़ों फुट गहरा ना भी हो, लेकिन इतना गहरा जरूर है कि फौज वहां पर रथों समेत डूब सकती है। अब ये खौफ ज़दा हो जाते हैं, और ये खौफ मैंने आपको बताया कि बड़ा अमूमी सा रद्द अमल है कि जब आप एक साइड पर देखें कि ट्रेंड फौज है और वो हमारे दुश्मन है, और दूसरी साइड पे समंदर, और अब आप बीच में आ गए, आपके साथ औरतें भी हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, और अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं?
खौफ ज़दा हो जाते हैं। और इस खौफ के बाद जो उनका अगला रद्द अमल है वो क्या है? तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, और यह बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। यह बड़ा अच्छा काम किया है क्योंकि उनको खुदावंद से ही फरियाद करनी चाहिए थी। और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। अब ये देखें कि खुदा के आगे जो फरियाद करना है ये तो ठीक है, लेकिन ये मूसा के आगे बुड़बुड़ाना ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो फरियाद आप खुदा के आगे कर रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है। हम भी अक्सर खुदा के आगे फरियाद करते हैं, किसी मुसीबत में हो, किसी मुश्किल में हो, खुदा के आगे फरियाद करते हैं कि खुदाया तू मुझे इस मुसीबत से निकाल, और साथ में हम कुड़ते भी हैं, बुड़बुड़ाते भी हैं, लोगों को भी इल्जाम देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। जिस तरह ये मूसा को इल्जाम दे रहे हैं कि तू हमें वहां से मरने के लिए ले आया है। और मूसा पर इस टाइम क्या इल्जाम लगाया जा रहा है कि मूसा ने ये प्लानिंग की कि मैं इनको यहां से निकाल कर बियाबान में ले जाऊं और वहां पर जाकर इनको क्या करूं? मार दूं, वहां पर जाकर मार दूं। और वो क्या कहते हैं कि क्या मिस्र में कब्रें ना थीं? और कहा जाता है कि मिस्री कब्रों के बारे में इतने पोजेसिव थे कि उन्होंने समझ लें 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जमीन सिर्फ कब्रों के लिए की थी। इतनी जगह थी वहां पर कब्रों और मकबरों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मकबरे और कब्रें बनाया करते थे। तो वो ये बात याद दिलाते हैं कि क्या वहां पर कब्रों के लिए जगह नहीं है? मिस्र तो खाली पड़ा सारा, दरियाए नील के अलावा आबादी नहीं है मिस्र में। सिर्फ दरियाए नील जहां से गुजरता, अगर आप नक्शा देखें तो उसके आसपास आबादी है, अदरवाइज पूरा मिस्र खाली है। आज भी वैसे वहां पर आबादी नहीं है, क्योंकि वो रहने के काबिल नहीं था। तो वो सारी जगह किस लिए है? कब्रों के लिए। तो क्या वहां पर इतनी जगह तो तू हमें यहां पर मरने के लिए ले आया, तू हमें वहां पर ही रहने देता? ये वो गिला करते हैं, शिकवा करते हैं। और किससे करते हैं? मूसा से। लेकिन ये असल में गिला मूसा से नहीं है, ये किससे है? खुदा से है। ये गिला किससे है? खुदा से है। क्योंकि और वैसे ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इतने मोजज़ात देखने के बाद, इतने बड़े बड़े मोजज़े देखने के बाद 10 आफतें आई, अभी तक जरा सी मुसीबत आती नहीं और ये लोग फौरन फिर जाते हैं। और अब आप देखें ना, 10 इतने बड़े बड़े काम खुदा ने किए जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इतने एक्सपीरियंस करने के बाद अगली मुसीबत आई, फिर ये लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं। और ये यहां पर खत्म नहीं होगा। खुदा इनको बचाएगा, खुदा इनको मन देगा, खुदा तमाम चीजें इनको देगा। इसके बाद जब अगली मुसीबत आएगी फिर बुड़बुड़ाएंगे, फिर अगली आएगी फिर बुड़बुड़ाएंगे। ये इंसान का एक अमूमी एटीट्यूड है। इंसान हमेशा ऐसे ही करता है। अगर मैं आपको यीशु मसीह के शागिर्दों की मिसाल दूं तो क्या उन्होंने मौजे नहीं देखे? देखे। वो यीशु मसीह के साथ रहते थे हर वक्त और देखते थे कि किस तरह से यीशु मसीह कुदरत पर गलबा पाता है, किस तरह से वो बीमारियों को ठीक करता है। और जब कश्ती पर बिठाकर यीशु मसीह ने उन्होंने भेजता कि जाओ तो मैं आ जाऊंगा, तो उन्होंने कहा असी गए, बस असी गए हम। और इवन के जब वो कश्ती में सो रहा था एक वाक़े में, तो क्या तू सुत्ता है, असी मरन लगे हैं। और फिर यीशु मसीह ने उन्हें डांटा भी कि क्या तुम इतना सा एतकाद रखते हो, यानी इतने मौजज़ात देखते हो और फिर तुम्हें दोबारा जरूरत पड़ती है कि तुम्हें यकीन दिलाया जाए कि खुदा तुम्हारे साथ है। तो क्या हमारी जिंदगी क्या इन लोगों से बेहतर है? अगर हम सोचें कि यार मिस्री केंजदे सी बनी इसराइल दे लोग, इन्ने तजर्बे खुदा दे वेख वेख के, इतना कुछ देखने के बाद हर पल हर नेक्स्ट मुसीबत पर ये सोचते थे कि यार खुदाया तू साढ़े नाल की कीता। तो हम भी आज ऐसा ही करते हैं। हम कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं उन लोगों से। हम अपनी जिंदगी में तजर्बात को देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप शुरू हो जाएंगे, यार खुदा ने मैनू बड़ी बरकत दी जनाब, खुदा ने मैनू इथों मुसीबत से कढ़िया, इथों मुसीबत से कढ़िया, इथों मुसीबत से कढ़िया, लिस्ट लंबी सुनाओगे तो जिस दिन तुहाडे ते अगली परेशानी आनी है ना, तुसी बिल्कुल फ्लैट हो जाना उथे। और ऐसा हमें फील होगा जैसे हम पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए और इससे निकल ही नहीं सकते, और ये शायद आखिरी हमारी मुसीबत होगी। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा।
یہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم بھی وہی ایٹیچیوڈ دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ یہ لوگ دکھا رہے تھے کہ وہ فوج آ گئی ادھر سمندر ہے ہون پتہ نہیں کی ہوئے گا. اور ایون کہ موسیٰ کو بھی نہیں پتا کہ اب خدا کیا کرے گا, کیونکہ خدا نے ابھی اس پر ظاہر نہیں کیا. خدا نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا کروں گا, ممتاز کروں گا. اس بات کا موسیٰ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ موسیٰ اس بات پر ایمان رکھتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت, چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا, کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے. خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو صرف خاموش ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ جو خوف ہے وہ بیسیکلی آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات آپ جلد بازی کرتے ہیں, بعض اوقات آپ جلد فیصلے لیتے ہیں, بعض اوقات آپ خود کو مصیبت میں دھکیل دیتے ہیں. یعنی ابھی خدا نے بحر کلزم کو 2 حصے نہیں کیا تو اسی پہنا چھاڑ مارتے, اور مختلف جو حالات ہیں وہ آپ کو گھیر لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات صرف خاموش رہ کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھنا ہوتا ہے. موسیٰ کو نہیں پتا کہ خدا کیا کرنے والا ہے, لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ انہاں مصریاں نوں ہون نہیں تسی ویکھو گے. اس نے ایمان سے یہ بات کہی ہے. اس کے بعد اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر, اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے. یعنی موسیٰ خدا دے کے فریاد کر رہا ہے کہ خدایا کچھ کر دے. ویسے لوکاں کے تو نے کہتا کہ تسی جناب تسلی رکھو, آج خداوند جنگ کرے گا تو تسی خاموش رہو گے. اور خود خدا کے حضور میں گڑ گڑا رہا ہے, دعا کر رہا ہے کہ خدایا کچھ کر. لوکاں گے تو میں کہہ آیا ہاں ہن تو کچھ کر دے بس. تو خدا نے کہا کہ تو کیوں یہاں پر گڑ گڑا رہا ہے, تو کیوں فریاد کر رہا ہے؟ اٹھ جا کر کیا کر, ایکشن کر. اٹھ اور ایکشن کر. یعنی بعض اوقات ہماری زندگی میں ایکشن کا وقت ہوتا ہے. کچھ وقت ہوتا ہے جب ہمیں دعا میں جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے, خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہم دعا کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا وقت ہوتا ہے کہ دعا سے زیادہ ضروری ایکشن ہوتا ہے. چارلس اسپرجن نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا کہ جی اگر کوئی گنہگار خدا کو کہے کہ خدایا میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, خدا نے انہوں کی کہنا ہے دعا چھڑتے پہلے گناہ چھڑ. اگر تو گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اٹھ ایکشن کر, اس گناہ کو کیا کر دے, چھوڑ دے. کیوں یہاں پر دعا کری جا رہا ہے کہ میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں؟ بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایکشن کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ایکشن کے کرنے کی, یعنی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اٹھ کر آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدایا میں توبہ کراں نہ کراں, توبہ کراں یا نہ کراں, کیونکہ خدا کی مرضی ہے کہ آپ توبہ کریں, آپ ایکشن کریں, آپ اس کو کیا کریں, عمل میں لائیں. خدا کہتا ہے کہ تو اٹھ اپنا ہاتھ بڑھا اور سمندر کو بیچ میں سے 2 حصے کر, اور دیکھ میں مصریوں کے دل کو سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے, اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا. اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں. ابھی بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ ان کو 7 دن ہو گئے. ان کو 7 دن ہو گئے, اور ایک ہی رات میں وہ بحر کلزم کو پار کر لیں گے. خدا نے بحر کلزم کو اتنا بیچ میں سے اس طرح سے 2 حصے کیا ہے, لکھا ہے کہ پانی دیواروں کی طرح ان کے آس پاس کھڑا تھا. اور آج بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بڑا شیلو واٹر تھا اور ہوا چلی اور ہوا نے پانی کو پیچھے دھکیل دیا, اور بعد میں پھر ہوا چلی اور پھر وہ پانی واپس آ گیا. یعنی وہ اس طرح سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو جی نیچرل بات تھی جو وہاں پر ہوئی تھی. اور ایون کہ اگر نیچرل بات بھی تھی تو وہ کی کس نے؟ خدا نے کی. یعنی اپنی مرضی اور اپنے وقت پر کس نے کی؟ خدا نے کی, اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. اگر کسی نیچرل فینومینن کو بھی استعمال کیا ہے تو وہ کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا. بہرحال کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ سائنس کا ہمیشہ پرابلم رہتا ہے, اور وہ کلام کو ہمیشہ سائنس
की निगाह से देखने की कोशिश करते हैं, और जो मोजज़ा है इसकी साइंस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन हो तो वो मोजज़ा नहीं होता। मोजज़े की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। मोजज़े का मतलब क्या है कि खुदा कुदरत के जो काम नेचुरली चल रहे हैं इनको इंटरप्ट करके अपनी मर्जी को क्या करता है, पूरा करता है। यानी आम तौर पर वो चीज वैसे नहीं होगी। कुदरत के फ्लो को खुदा रोक कर कोई काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, मोजा। यानी आपकी आंखें अगर जन्म का अंधा है तो उसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएं तो ये क्या है, मोजा है, क्योंकि आम तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। हां, खुदा के काम करने के दो तरीके हैं, एक को हम मोजा बोलते हैं और एक को हम प्रोविडेंस बोलते हैं। प्रोविडेंस का मतलब यह है कि खुदा हालात को ऐसा बना देता है कि आपका काम हो जाता है। यानी जिस तरह यूसुफ का केस देख लें कि खुदा ने वो हालात इस तरह से डिजाइन कर दिए कि यूसुफ क्या है, प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठ गया। और खुदा ज्यादातर काम प्रोविडेंस के साथ करता है, यानी वो हालात को इस तरह से बना देता है कि वो काम उसकी मर्जी के मुताबिक जरूर होता है। और बाज़ औक़ात खुदा मोजज़ाना तरीके से भी काम करता है। बहरहाल इससे आगे लिखा है, और खुदा उनका फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। अब क्योंकि फौज आ गई और ये लोग घबरा गए हैं, सो वो जो बादल का सतून और आग का सतून था वो कहां पर आ गया, मिस्री लश्कर और इस्राएली लश्कर के दरमियान में आ गया, ताकि वो लोग आगे ना बढ़ सकें। सो यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो अभी रात को उससे रोशनी रही। ये जो अंधेरा है ये किन के लिए है, मिस्रियों के लिए, और रोशनी किन के लिए है, इस्राएलियों के लिए। और ये हमारी निजात के काम को भी जाहिर करता है। आज भी हम देखते हैं कि कलाम की एक शख्स को समझ आती है और दूसरे को नहीं आती। एक ही बाइबल दो लोग पढ़ेंगे, कोई उसमें से नुक्ताचीनी करने के लिए, उस पर सवाल उठाने के लिए पढ़ेगा तो उसको कोई समझ नहीं आती, लेकिन जिसके दिल को खुदा रोशन करता है उसको समझ आती है। जो ईमानदार है, जिस पर खुदा का फजल है, उसके लिए ये नूर है, उसके लिए क्या है, नूर है। और जो जिस पर खुदा का फजल नहीं है उसके लिए क्या है, तारीकी है। उसको कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। वो हो सकता है पढ़ पढ़ के इसमें से गलतियां निकालने की कोशिश करे, लेकिन उनके लिए ये क्या है, तारीकी है। सो हम यहां पर एक ग्राफिक पिक्चर इस बात की देखते हैं, एक निजात याफ्ता और गैर निजात याफ्ता के दरमियान। लिखा है, फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया, और पानी दो हिस्से हो गया, और बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकुब किया, और फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए। अब ये देखें कि ये क्लाउड जो है, वो जो आग और रोशनी का सतून है, बादल का सतून है, ये हट गया है, ये उस लश्कर के आगे से हट गया, और जानबूझकर खुदा ने इसको हटाया ताकि फौज मिस्र की क्या करे, पीछा करे। मिस्र की फौज क्या करे, पीछा करे। और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन अब तो वो समंदर के बीच में जा चुके हैं, अब वो समंदर के बीच में जा चुके हैं। बनी इस्राएल आगे आगे निकल गए हैं और ये उनके पीछे पीछे समंदर में जा चुके हैं, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, और सुबह होते होते समंदर फिर अपनी असली कुवत पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समंदर के बीच में मिस्रियों को तहवाला कर दिया, और पानी पलट कर आया, और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सारे लश्कर को जो इस्राएल का पीछा करता हुआ समंदर में गया था गर्क कर दिया, और एक भी उनमें से बाकी
ना छूटा, पर बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। सो खुदावंद ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। अब अगर थोड़ा सा आप इस इमेज को देखें, इस मंजर को देखें, तो एक डिलीवरेंस है फसा के मौका पर, एक डिलीवरेंस है फसा के मौका पर, और फसा के मौका पर खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लिया। और दूसरी डिलीवरेंस क्या है? बहराए कुलजम पर, रेड सी पर। दूसरी डिलीवरेंस क्या है? रेड सी पर। और अगर खुदा उनको बहिराए कुलजम पर ना बचाता तो फसा पर बचाने का क्या मकसद रह जाता? फसा पर बचाने का क्या मकसद रह जाता? यानी अगर वो बहिराए कुलजम पर मर जाते हैं, पकड़े जाते हैं, या फौज उन पर गलबा पा लेती है, कुछ भी होता है, तो पहली जो उन्होंने फतह पाई है यानी फसा के मौका पर, उसका क्या मकसद रह जाता है? कोई मकसद नहीं रहता। जो पहली फतह है ये बेसिकली सलीब को जाहिर करती है। पहली फतह किसको जाहिर करती है? सलीब को। और दूसरी फतह रेजुरेक्शन को या जी उठने को जाहिर करती है। रेजुरेक्शन और जी उठने को जाहिर करती है, यानी सलीब पर आपके तमाम गुनाहों का कफारा दिया गया, लेकिन अगर आप जिंदा नहीं किए जाते तो उस कफारे का आपको क्या फायदा? अगर आप जी नहीं उठते, अगर आप जिंदा नहीं किए जाते, आपको हमेशा की जिंदगी में नहीं पहुंचाया जाता मुकम्मल गुनाहों से खलासी देकर, तो आपको उस कफारे का क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये मुकम्मल खलासी है। खुदा ने 100% खलासी दी है, एक भी उनमें से बाकी नहीं छूटा। और उनकी लाशों को इसराइलियों ने कहां पर देखा? समंदर के किनारे पड़े हुए। मिस्रियों की लाशों को समंदर के किनारे पड़े हुए देखा। अब खुदा ने उनको 100% मुकम्मल खलासी दिला दी है। आज के बाद मिस्र का, उसकी फौजों का, फिराउन का जिक्र बनी इसराइल में नहीं होगा। कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, उनको कोई अपने दुश्मनों से खौफ बाकी नहीं, क्योंकि खुदा ने उनको मुकम्मल तौर पर खलासी दे दी है। और इसी तरह की खलासी खुदा हमें गुनाह की जिंदगी से देता है। और यह मुकम्मल खलासी होती, ये क्या है? मुकम्मल खलासी को जाहिर करता है। यह मुकम्मल खलासी को जाहिर करता है। आइए 15वें चैप्टर पर आते हैं। 15वें चैप्टर में गीत का जिक्र है, और यह गीत किसका है? मूसा का। मूसा ने एक गीत गाया है, और यह गीत बेसिकली क्या करता है? शुक्रगुजारी को, खुदा की शुक्रगुजारी को जाहिर करता है। और इसमें मूसा का जिक्र नहीं है, इसमें मूसा की तारीफ नहीं है, बल्कि इसमें किसकी तारीफ है? खुदा की तारीफ है। इसमें किसकी तारीफ है? खुदा की तारीफ है। और इसके बाद मरियम का गीत है। मरियम ने एक गीत गाया, और मरियम मूसा की बड़ी बहन थी। कलाम हमें यह बताता है, और ये वही बहन थी जिसने ध्यान रखा था जब मूसा को पानी में डाला गया कि ये कहां जाता है। और यही वो बहन है जो कि फिरौन की जब उसको बेटी उठाती है तो वो उसके लिए कहती है कि मैं दाई का बंदोबस्त करूं जो इसको दूध पिला सके, मैं एक इब्रानी औरत का बंदोबस्त करूं। खैर 22वीं आयत में आए, 15वें बाब की 22वीं आयत लिखा है, फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया, और वो शूर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। अब देखें, इन्होंने एक बड़ा अनयूजुअल सा रूट लिया है। ये समंदर पार करके ये मारा, यहां पर ये आए हैं, और ये 3 दिन का रास्ता है। ये कितने दिन का रास्ता है? 3 दिन का रास्ता, यानी शूर के बियाबान में। अब बियाबान में जब आप चलते हो तो इंसानी जिस्म जो है वो तकरीबन 3 दिन तक गुजारा कर सकता है। कितने दिन तक? तकरीबन 3 दिन तक वो पानी के बगैर रह सकता है। सो इनके पास ये पानी के जखीरे नहीं लेकर निकले वहां से,
ये खुराक तो लेकर निकले हैं मिस्र से, जो कि शायद 1 महीने तक इनके पास चलती रहेगी, लेकिन ये पानी तो साथ में नहीं लेकर निकले, और ना ये तजारती रास्ते से गए, ये तो एक बड़े अनयूजुअल से वे से गए। सो वहां से इनको खरीदने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, खरीदने पर खुराक भी नहीं मिलेगी। पैसे तो इनके पास हैं, इनके पास मालो दौलत तो है, क्योंकि जब ये निकले थे तो ये मिस्रियों से बहुत सारा माल लेकर निकले थे। खुदा ने मिस्रियों को इन पर मेहरबान किया था, और सोना, चांदी, जेवरात, ये सारी चीजें इनके पास बकसरत है। लेकिन खरीदे किससे? इनके पास खरीदने के लिए कोई वहां पर स्टोर नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जहां से ये पानी खरीद सके। 3 दिन तक ये चलते रहे, और 3 दिन के बाद ये मारा नामी जगह पर आते हैं, और वहां पर इनको पानी मिल जाता है। लिखा है, और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके, क्योंकि वो कड़वा था, क्योंकि वो कड़वा था। यानी 3 दिन के बाद अगर आपको पानी मिला ही है तो वो क्या है? कड़वा है। ये अब देख लें कि बनी इसराइल का जो सफर है वो शुरू हो चुका, बनी इसराइल का सफर शुरू हो चुका। और 7 दिन मैंने आपको बताया कि 7 दिन में ये कहां पर पहुंचे थे? समंदर पर। फिर एक रात में इन्होंने समंदर को क्रॉस किया है। उसके बाद ये 3 दिन आगे चलते रहे हैं, और तकरीबन कितने दिन हो गए इनको निकले हुए? को 10-11 दिन हो गए, 10-11 दिन इनको हो चुके। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं? उसने खुदावन से फरियाद की। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया, जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आईन और शरीयत बनाई, और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई आफत ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। अब यहां पर 2 बातें अहम है। पानी कड़वा है, और कड़वे पानी को खुदा ने मीठा कैसे किया, पीने के काबिल कैसे किया? खुदा ने उसको एक दरख्त दिखाया कि उसको पानी में डालो तो क्या होगा? पानी मीठा। अब ऐसे अगर हम मूसा की जगह पर होते तो हमारे जहन में क्या सोच आती कि अब तक काम खुदा कैसे कर रहा है? मूसा की लाठी से कर रहा है। सो हो सकता है कि खुदा लाठी मूसा ने कह के मार लाठी, लेकिन खुदा ने अब की बार उसको लाठी मारने का नहीं कहा, बल्कि एक और लकड़ी डालने का कहा कि पानी में डालो। हालांकि यह भी हो सकता था, लेकिन हम लोग ये सोचना शुरू कर दें कि खुदा इस तरीके से काम करेगा, खुदा भी इस तरीके से काम करेगा, क्योंकि खुदा के काम करने के अपने तरीके हैं, और वो अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। आम लोगों की, जो कि अभी तक यही देखते आ रहे हैं कि हर काम कैसे हो रहा है, खुदा मूसा को कहता है कि अपनी लाठी बढ़ा, या इसको पानी पर मार, या मुख्तलिफ उसके इस्तेमाल बताए हैं आफतों और मुसीबतों में। तो शायद खुदा अब भी इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन खुदा उसका इस्तेमाल नहीं करता। सो खुदा का काम करने का एक अपना तरीका है, और वो किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। और यहां पर लकड़ी का जिक्र किया गया है जिसने पानी को मीठा कर दिया, और बहुत सारे लोग इसको सलीब से भी तशबीह देते हैं, जिसने हमारी जिंदगी की तमाम कड़वाहटें जो है वो खत्म कर दी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, कुछ मुफस्सर ख्याल करते हैं कि ये जो पानी था ये स्टिल कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कंटेंट है इसमें ज्यादा था, और उस कंटेंट के ज्यादा होने की वजह से, यानी ये पानी थोड़ा अभी भी तुर्स था, तेज था, ये क्या करेगा? उनके मैदों को साफ कर देगा, उनके मैदों को साफ कर देगा, और उनको जिस्मानी तौर पर थोड़ा मजबूत करेगा कि वो बियाबान में आगे उन्होंने अभी चलना है जाकर, वो उसके लिए उनके जिस्मों को तैयार करेगा। यानी ना सिर्फ उनकी प्यास बुझाएगा, बल्कि ये पानी क्या करेगा? उनको फायदा भी देगा। और अगर कुछ भी असरात अभी मिस्र के उनके अंदर हैं, तो वो क्या होंगे? उनके अंदर से जिस्मानी तौर पर भी निकल जाएंगे। यानी खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला है, और मिस्र को भी बनी इसराइल से निकाल दिया है। समझे आप? खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, और मिस्र को भी बनी इसराइल से निकाल दिया। ना तो उनको खमीर लेने दिया, कुछ भी ऐसा कि वो पुराने असर को आगे लेकर आए।
वो ना तो वो खमीर ले सके, और अगर अब भी कोई असरात होंगे बाकी तो जिस्मानी तौर पर भी निकल जाएंगे। जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर खुदा ने मिस्र और बनी इसराइल को बिल्कुल 100% अलग अलग कर दिया। और खुदावंद ने वहां पर उनको एक हुक्म दिया और उनको ताबे रहने के लिए कहा। हुक्म का क्या मतलब है कि जब भी आपको हुक्म दिया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि आपने इसके ताबे रहना है, आपने इसके ताबे रहना है, ताबे फरमानी करनी है। और जब आप ताबे फरमानी करेंगे, यहां पर ये देखें खुदा ने बीमारी का जिक्र किया है और कलाम में बहुत जगह पर बीमारी और हुक्म मानने को या ताबे फरमानी को एक साथ बयान किया गया है। अक्सर बीमारी हम पर हमला करती है जब हम ताबेदार या ताबे फरमान नहीं होते। खुदा ने इसराइल को भी यही कहा है कि अगर तुम हुक्म मानोगे, अगर तुम मेरे आईन पर चलते रहोगे, अगर तुम ताबे रहोगे तो तुम बीमारियों से भी बचे रहोगे। फिर वो एलीम में आए जहां पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। अब एलीम में आकर ये एक ऐसी जगह है जहां पर पानी भी है, जहां पर खजूर के दरख्त भी हैं। ये थे मौजाने, ये थे कि ये थे मौजाने, यानी एक अच्छी जगह पर आ गए हैं, वहां पर इनको पानी भी खूब मिलेगा, वहां पर इनको खजूर के दरख्त भी मिलेंगे, शायद कुछ खाने पीने को भी मिल जाए। और खाने पीने को अभी वैसे इनका जो साथ का सामान है जो लेके आए वो भी चल रहा है, वो भी खत्म नहीं हुआ। सो ये एक बेहतर प्लेस है। लेकिन आप ये देखें कि यहां पर खाने पीने को है, खाने को है, पीने को है, और अगर खजूर के दरख्त हैं तो इसका मतलब हरियाली वगैरह भी होगी, कोई प्लेस भी अच्छी होगी, कोई ठंडियां हवा भी हो सकता है चल दी हों। जाहिरी तौर पर सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन यहां पर खुदा का कलाम नहीं है, खुदा का कोई तजर्बा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ नहीं होता, कोई कलाम नहीं होता, कुछ भी नहीं। बस ये कि एक अच्छी जगह पर आए और फिर वहां से आगे चल पड़ेंगे। ये अगला चैप्टर मैं समराइज कर देता हूं क्योंकि ये जरूरी है। फिर वो एलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में जो एलीम और सीना के दरमियान है पहुंची। और दरमियान में पहुंचने में इनको कितना अरसा लगा? ये दूसरे महीने की 15वीं तारीख। और ये चले कब थे? पहले महीने की 15वीं तारीख को। 14 को फसा थी, 14 की रात को फसा थी और अगली सुबह वहां से चल पड़े थे। सो पूरा एक महीना हो गया इनको वहां से निकले हुए, और एक महीने में ये हुरब के पहाड़ से थोड़ा पहले पहुंच चुके हैं। हुरब के पहाड़ पर जाएंगे, वहां पर खुदा की प्रस्तिश करेंगे, मूसा ऊपर जाएगा, वहां पर शरीयत नाजिल होगी। लेकिन अभी ये उस तरफ को जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले बियाबान में मौजूद हैं और उस बियाबान में इनको तकरीबन एक महीना पूरा हो गया। और ये फिर वही काम करने लगते हैं। उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम हमको इस बियाबान में इसलिए ले आए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। अब आगे जाकर आप कलाम में ये भी पढ़ेंगे कि ये खीरे और प्याज ये भी याद करते हैं कि हाय वो खीरे। तो कहते हैं कि हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। अब कहा यह जाता है कि एक महीने में इनके पास खुराक की कमी होना शुरू हो गई है, खुराक की कमी होना शुरू हो गई है। जो खुराक ये लेकर निकले हैं वो कम पड़ना शुरू हो गई है। लेकिन अब ये भूखे मर नहीं रहे। ये जो भूख इनको नजर आ रही है ना कि भूखे मर जाएंगे, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन नहीं है कि जी जनाब कई हफ्तों से इन्होंने खाना नहीं खाया। भाई महीना तो हले होया है, को मन दो मन जिन्ना भी आटा उत्थे लैके निकले होंगे, वो महीना तो काढ़ ही लिया होएगा ना। सो अभी ये इनका ये शायद फ्यूचर को देख रहे हैं कि भाई अगे भी बियाबान ही है, अगे भी कुछ नहीं लभना, जे पीछे नहीं लभा तो अगे भी कुछ नहीं लभना। सो असी तो भुखे मार जाएंगे इत्थे। अब वो मूसा और हारून को आकर कहते हैं कि हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर, और हालांकि सबको पता है कि कोई गोश्त नहीं सिखाते, एवें वधा चढ़ा के दसन डे ने। क्योंकि अक्सर जो कंप्लेन करने वाला एटीट्यूड होता है ना, जो भी शख्स आप जिंदगी में देखेंगे कि वो कंप्लेन करता है, उसको एतराज होता है ना चीजों पर,
تو وہ جب بھی کوئی کنڈیشن بیان کرے گا وہ ودا چڑھا کے کرے گا, یار جناب اتنے میں انج کرنا سا انج کرنا سا, یعنی کوئی بندہ شہر چ پنڈ کی گل دسدا ہوئے گا تو ایویں ودا چڑھا کے دسی جائے گا جناب سارا محلہ میری گل سنتا سی, بھاویں محلہ انہوں بالکل گھا نہ پاؤندا ہے, بھاویں تے گھر والے نہ وہی سنتے ہون. صحیح گل ہے, وہ کہندا اتنے میری عزت ہی کونی جناب, اتنے میری عزت ہے, اور بعد پتہ لگے وہ اپنے گھر چ بھی عزت کونی سی. سو یہ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہے کمپلین کرنے والا, اور ان کا ایٹیچیوڈ ہے یہ کمپلین کرنے والا, یہ باز نہیں آئیں گے, ان کو من ملے گا, ان کو گوشت ملے گا, ان کو سب کچھ ملے گا, لیکن یہ باز نہیں آئیں. اور خدا بھی ایسا مہربان خدا ہے, اور جب بھی میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں یا اس میں مطلب اس پر سوچ بچار کرتا ہوں تو مجھے بڑی یہ زبردست باتیں لگتی ہیں. دیکھیں کہ خدا کی کتنی محبت ہے. ابھی خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں گوشت کھانے کو دوں گا, یہ نہیں کہا کہ اب پہلا شکایتیں بند کرو تو پھر گوشت لبے گا. خدا نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی کہ پہلا تو شکایتیں بند کرنا, جنی دیر تک کہ تیری شکایتیں نہ بند ہوئی تینوں کچھ نہیں لبنا. خدا نے کہا کہ میں کیا کروں گا, تم کو گوشت کھانے کو دوں گا. تب خدا نے موسیٰ سے کہا میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا, اس سے یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں کہ اس میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں. اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا. اور لکھا ہے تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ تم شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے, اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے. یعنی شام کو گوشت آئے گا اور صبح کو من آئے گا, سویرے روٹی, شام کو گوشت سویرے روٹی آئے گی, کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے, اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو. اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا, کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو وہ اسے سنتا ہے. اور ہماری کیا حقیقت ہے, تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر. اور یہ حقیقت میں بڑبڑانا ہمیشہ خداوند ہی پر ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. اور خداوند ان کو بیسیکلی آپ سارا آگے پیسج پڑھ لیجئے گا. شام کے وقت کیا ہوا کہ بہت ساری بٹیریں آ جاتی ہیں, بہت ساری بٹیریں. یہ مائیگریٹری برڈز ہیں جو کہ اس بیابان سے بلکہ اس سے آگے جو عریبین پیننسلا ہے وہاں سے افریقہ میں, یورپ میں یہ بیسیکلی مائیگریٹ کرتے تھے. اور ان میں یہ بڑے لو ہائٹ پر اڑنے والے پرندے ہیں, یہ جو اس میں یہ بٹیریں بھی شامل ہیں. بہت سارے پرندے مائیگریٹ کرتے تھے. سو خدا نے اتنی زیادہ بٹیریں وہاں پر اکٹھی کی کہ لو ہون تسی کھاؤ. اور ویسے بٹیریں جو مصری ہیں یہ بڑے شوق سے کھاتے تھے. سو ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل اتنے بھی کوئی پھڑ پھوڑ کے کھاندے ہوں. ویسے شاید کوئی اتنا گوشت تو ان کو نہیں ملتا ہوگا جتنا انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی گوشت دیا ہانڈیاں تو بیٹھ کے گوشت کھانے سے, لیکن ان کو گوشت کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہوگا نا کھانے کو. اور صبح کے وقت ان کو خدا نے من کھانے کو دیا. اور من کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے. وہ سفید دھنیے کی طرح ہوتا تھا, اس کا یہ سارے ریفرنس لکھے ہیں آپ ان کو پڑھ لیجئے گا. اور اس کا جو مزہ شہد کے بنے پولے کی طرح ہوا کرتا تھا. اور ہر کوئی جا کر ایک دن کی خوراک اپنے لیے جمع کرتا تھا. کتنے دن کی؟ ایک دن کی, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر کوئی اس سے زیادہ جمع کرے تو اس کا زیادہ نہیں نکلتا تھا. اور اگر کوئی رات کو اسے کنزیوم اس دن نہیں کرتا تو وہ کیا ہوتا تھا؟ سڑ جاتا تھا. اور سبت سے پہلے وہ 2 دن کا جمع کرتے تھے. مقصد یہ تھا کہ من سے بھی خدا ان کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ تمہارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ خدا پر ہونا چاہیے. تمہارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اور آگے جب استثناء کی کتاب میں من کو لے کر ہی یہ بات لکھی گئی کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یعنی تم کو خدا من کھانے کو دے رہا ہے, اور اس من کے کھانے سے بھی یہ مراد ہے کہ خدا تمہارا پرووائیڈر ہے. وہ تمہیں روز پرووائیڈ کرے گا. تمہیں روز خدا پر بھروسہ کرنا ہے اپنی زندگی کے لیے. ہر روز خدا پر بھروسہ کرنا ہے. چلے اس سے آگے اب نیکسٹ ہی دیکھیں گے. اور